اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اعراب کے ٹاپک کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ آج ہم اس میں غیر منصرف اسما کے بارے میں کچھ جانیں گے، یعنی جنہیں ہم نے کہا تھا یہ پارشلی چینجنگ ناؤنس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اسم کا ٹاپک شروع کر لیا ہے۔ اللہ کے کرم سے ہم نے یہ جانا کہ اسم کے متعلق 4 چیزیں ایسی ہوتی ہے جو بیک وقت ایک اسم امپلائی کرتا ہے، یعنی 4 ایٹریبیوٹس ہوتی ہے ایک اسم کی۔ ان میں سے ایک ہے اعراب، جس کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں، جسے ہم نے سٹیٹس کہا تھا۔ پھر ہم نے جانا کہ اسم 3 حالات سے گزرتا ہے، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جن 3 خوبیوں کے بارے میں جانیں گے جو اسم کے ساتھ متصل ہوتی ہے، وہ ہے اس کا عدد ہونا، جسے ہم نمبر کہتے ہیں، یعنی اسم کا واحد، مثنیٰ یا جمع ہونا۔ اس کے بعد اور ایک خوبی جو اسم کی ہے وہ ہے اس کی وسعت، جسے ہم کیپیسٹی کہتے ہیں، نکرہ یا معرفہ ہونا۔ اور ایک خوبی اسم کی ہے اس کا جنس، جسے ہم جینڈر کہتے ہیں، یعنی اس کا مذکر یا مؤنث ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے اعراب، جسے ہم نے کیس یا سٹیٹس کہا تھا، ہم نے شروعات یہاں سے کی کہ اعراب ہوتا ہے عربی بنانا۔ پھر پہلے ہم نے حرکات اور اعراب کے فرق کو سمجھا۔ ہم نے یہ جانا کہ یہ جو حرکت ہوتی ہے یہ کسی بھی لیٹر پر لگنے والی حرکت کو کہتے ہیں، جیسے اس میں اس کی حرکت زبر ہے، اس کی حرکت زبر ہے اور اس کی حرکت زبر ہے۔ جبکہ اعراب یا جسے ہم حرکتی اعراب کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسم کے آخری حرف پر لگنے والی حرکت، یعنی بس ہمارا فوکس اینڈ ساؤنڈ پہ ہوگا، اس پر 2 زبر کی تنوین ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس اعراب کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے یہ جانا کہ اردو میں نے اور کی جیسے الفاظ کو یوز کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ کام کس نے کیا۔ جیسے ہم نے ایک مثال لی تھی، زید نے سالم کی مدد کی، یا اسے ہم نے یوں بھی لکھا تھا، سالم کی زید نے مدد کی، یعنی کی اور نے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کام کس نے کیا اور کام کس پر واقع ہوا۔ اور اسی کو انگلش میں ہم نے سمپل پلیسمنٹ سے دکھایا، یعنی جو فاعل ہوتا ہے، جو ڈوئر ہوتا ہے، وہ پہلے آتا ہے۔ اس سینٹنس کو اگر ہم ایکویٹ کریں تو اس کا ترجمہ ہوگا زید ہیلپڈ سالم۔ اسی کو کرنے کے لیے عربی میں ہم نے دیکھا کیا کرنا ہے، بس ہمیں اسے ایک فکسڈ اعراب دینا ہے جو کہ اس کی پوزیشن کو فکس کر دے گا۔ جیسے ان 3 جملوں کو دیکھے، نصر سالمن زیدن، نصر زیدن سالمن، زیدن نصر سالمن، تینوں کا ترجمہ سیم ہے، یعنی یہاں پہ ورب پہلے ہے، پھر آبجیکٹ ہے، پھر سبجیکٹ ہے، یہاں ورب ہے، یہاں سبجیکٹ ہے، پھر آبجیکٹ ہے، یہاں پہلے ہی سبجیکٹ ہے، پھر ورب ہے، پھر آبجیکٹ ہے۔ کیا پتا چلا کہ لوکیشن معنی نہیں رکھتی، بلکہ جو اس کو پراپرٹی دی گئی، جو اس کا ایٹریبیوٹ فکس کیا گیا، جو اس کا اعراب فٹ کیا گیا، اب آپ اسے کہیں بھی رکھیں یہ بدلے گا نہیں۔ یعنی نصر سالمن زیدن، نصر زیدن سالمن، زیدن نصر سالمن، تینوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زید نے سالم کی مدد کی، یعنی زید جو ہے یہ فاعل بن گیا، جبکہ سالم جو ہے وہ مفعول بن گیا۔ تو فائنلی ہم نے یہ جانا کہ اسم دراصل 3 حالات سے گزرتا ہے۔ ڈیفالٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رفع، جس کو ہم انگلش میں نومینیٹو کیس کہتے ہیں۔ جو رفعی پوزیشن پہ اسم ہوتا ہے اسے ہم مرفوع اسم کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ فاعل جنرلی رفعی پوزیشن پہ ہوتا ہے۔ مزید ہم نے نوٹ کیا کہ اسم کی بائی ڈیفالٹ پوزیشن یہی ہے، یعنی رفعی پوزیشن۔ اس کے بعد اور ایک حالت جس سے کہ اسم گزرتا ہے وہ ہے حالت نسبی، اور جو اسم نسبی حالت میں ہوتا ہے ہم اسے منصوب کہتے ہیں، جیسے مفعول، اسے ہم نے آبجیکٹیو کیس بھی کہا تھا۔ آخر پر ہم نے جانا اسم کی اور ایک حالت ہے جس میں کہ وہ گزرتا ہے، وہ ہے اس کی جری حالت، یعنی رفع، نصب اور جر۔ جو اسم جری حالت میں ہوتا ہے ہم اسے مجرور کہتے ہیں۔ اس میں ہم پڑھیں گے ان میں سے ایک ریزن جو ہے
وہ ہے पॉजिटिव केस यानी इजाफत का होना। और इंशाल्लाह आगे जब हम मजरूरात पढ़ेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कुछ ऐसे हरूफ होते हैं, आमिल हरूफ होते हैं जो कि इसम को मजरूर बनाते हैं। आइए आगे जाने से पहले इन आयत को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए सूरह बकरा की आयत 51 है, सूरह नंबर 44 की आयत 3 है, उसके बाद सूरह नंबर 97 की आयत 1 है, सूरह नंबर 97 की आयत 2 है। तो सबसे पहले इस आयत को देखते हैं। वइज़ वाअदना मूसा अर्बईन लैलतन तुम्म इत्तखज़्तुमुल इजला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। तो इसमें हमारा फोकस किस पर है? लैला पे, यानी रात पे। तो यहाँ पे क्या है? लैलतन। अब यहाँ देखें सूरह नंबर 44 की आयत 3 में देखें, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन। तो क्या पता चला? ये लैलतन यहाँ नस्बी हालत में है, ये लैलतिन यहाँ किस हालत में है? ये जर्री हालत में है। यहाँ पर भी इसका तर्जुमा रात ही होगा, यहाँ पर भी इसका तर्जुमा रात ही होगा, यानी लफ्ज का जो माने होगा वो सेम रहेगा, अलबत्ता जो इसका थीम होगा वो चेंज होगा। और याद करो जब हमने मूसा से वादा लिया 40 रात का, तुम इत्तखज़्तुमुल इजला, फिर तुमने इजल को क्या बनाया? पकड़ा, माबूद बनाया। इसके बाद वअंतुम ज़ालिमून, और तुम जुल्म करने वाले थे। इस आयत में देखें, इन्ना अंज़लनाहु, बेशक हमने, अंज़लनाहु इसे नाजिल किया हमने, फी लैलतिन मुबारका, बाबरकत रात में। इन्ना बेशक, कुन्ना हम थे, मुनजिरीन डराने वाले। यहां पर आप नोट कर सकते हैं कि ये जर्री हालत में इस फी की वजह से गया है, जो कि हमें आगे पढ़ना है। अब देखें, यहां पर देखिए, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, बेशक हमने नाजिल किया इसे लैलतिल कद्र में। तो यहां पर है लैलतिल कद्र, और यहां देखें वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तो ये लैलतुल कद्र है। तो लैलतु किस पोजीशन में है? ये रफी पोजीशन में है। ये किस पोजीशन में है? ये जर्री पोजीशन में है। और अगर हम यहां पर देखें, कद्र दोनों जगहों पर जर्री पोजीशन में है। और इंशाल्लाह ये भी हम पढ़ेंगे कि ये दरअसल एक मुरक्कब बनता है जिसमें कि दूसरा इसम हमेशा मजरूर होता है। ताइबतुन को कंपेयर करने के लिए हमने इन दो आयत को लाया है। यहां पे क्या है? तय्यबतुन, तय्यबतुन यानी ये किस पोजीशन में है? ये रफई पोजीशन में है। तय्यबतन क्या है? ये किस पोजीशन में है? ये नस्बी पोजीशन में है। और यहां देखें, यहां क्या है? तय्यबतिन, ये किस पोजीशन में है? ये जर्री पोजीशन में है। यानी इन आयात को देखकर अभी बिना तर्जुमे के हमने देखा कि इस तय्यबतुन को हमने देखा कि ये किस पोजीशन में है? ये रफी पोजीशन में है। ये किस पोजीशन में है? ये नस्बी पोजीशन में है। और ये किस पोजीशन में है? ये जर्री पोजीशन में है। लकद अलबत्ता तहकीक काना थी लिस्सबाइम फी मसा किनिहिम आया, सबा के लिए उनके अपने ही मस्कन में एक बहुत बड़ी निशानी थी। जन्नतानी यानी दो बाग, जन्नतानी दो बाग, अन यमीनिन व शिमालिन, यमीन कहते हैं दाएं और शिमाल कहते हैं किसको? बाएं को। कुलू खाओ, मिर रिज़्क़ि, रिज़्क में से, रब्बिकुम तुम्हारे रब से, वशकुरू ये फ़ैल अमर है, वशकुरू और शुक्र अदा करो, लहू उसका, बलदतुन तय्यबतुन, बलदतुन तय्यबतुन पाकीज़ा शहर, व रब्बुन गफूरुन और बख्शने वाला परवरदिगार। यानी पहले हम इसका तर्जुमा करते हैं और फिर इसका। यूं भी तर्जुमा कर सकते हैं, व रब्बुन गफूरुन और परवरदिगार बख्शने वाला। अलम क्या नहीं, तरा कैफा क्या आपने नहीं देखा, कैफा दरबल्लाहु कि कैसे बयान की अल्लाह ने, मसलन मिसाल, कलिमतन तय्यबतन पाक कलिमे की, का मानन शजरतिन तय्यबतिन पाक दरख्त की मानंद। अब इसके बारे में मजीद अल्लाह ताला फरमाते हैं, असलुहा इसकी जड़,
साबितुन मजबूत है, व फरउहा और इसकी शाखें फिस समा आसमान में है। अगर आप इसमें मजीद फोकस करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये सबा इन किस में है, ये झर्री पोजीशन में है। एक आइडिया ले लीजिए लाम की वजह से। इसी तरह मस्कनी क्यों आया, फी की वजह से। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाइए, अन की वजह से ये बन गया यमीनिन शिमालिन। इसी तरह मिन से बन गया रिज़्क़। इसी तरह ये क्यों है, ये डिफॉल्ट पोजीशन पे है। बलदतुन तय्यबतुन रब्बुन गफूरुन, यानी ये चारों अस्मा किस में है, ये रफी पोजीशन में है। अब आगे यहां देखें, मसलन कलिमतन तय्यबतन, ये तीनों किस पोजीशन में है, नस्बी पोजीशन में है। और फिर कने, इन दो अस्मा को किस पोजीशन में ले लिया, जर्री पोजीशन में। शजरतिन तय्यबतिन, फिर से देखें साबितुन मरफू पोजीशन में है, और फिर से फिस समाए, यानी जर का जो रीजन है वो फी है। उसके बाद अल्लाह ताला की तौफीक से हमने कल ये भी जाना था कि जो एराब होते हैं बेसिकली इसके दो टाइप्स होते हैं। जनरल क्या है कि हम हरकत से ही पहचानेंगे कि ये किस पोजीशन में है। लेकिन ये जो है ये वैलिड कब है, ये वैलिड तब है जब इसम के आखिर पर तनवीन है, जब इसम के आखिर पर पेश है, जबर है, जेर है। लेकिन फिर हमने देखा कि जो ड्यूअल होता है, जो ड्यूअल होता है और जो प्लूरल होता है, ड्यूअल और प्लूरल में क्या होता है, उसमें हम सफिक्स से पहचानते हैं कि ये किस पोजीशन में है। इसके लिए हम जब हम नंबर का टॉपिक करेंगे वहां इसे फिर से रिकैप करेंगे। यहां फिलहाल हमने याद क्या रखना है कि मुसन्ना में यानी ड्यूअल में क्या होता है, आन का साउंड रफा के लिए होता है, और नस्बी और जर्री में आईनी होता है, आनी आईनी आनी आईनी। फिर देखें जो मुजक्कर जमा होते हैं, जमा मुजक्कर, और इंशाल्लाह हम ये जानेंगे जमा मुजक्कर सालिम, जिनको कि सफिक्स होता है। जब सफिक्सिंग होगी तो सफिक्स से हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ऊना होगा रफई पोजीशन वाला, और ईना जो होगा वो नस्बी या जर्री पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। मोन्नस में हमारे पास क्या है, अगर आतुन है तो ये रफई पोजीशन है, अगर आतिन है ये नस्बी या जर्री हालत हो सकती है। अब आइए इस ग्रिड से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम क्या लेते हैं, मोमिनुन, तो मोमिन का ड्यूअल जो है वो है मोमिनानी, और इसका प्लूरल क्या है, मोमिनूना। मोमिनुन किस पोजीशन में है, ये मरफू है। मोमिनन मंसूब है, मोमिनिन मजरूर है। मोमिनुन मोमिनन मोमिनिन, मोमिनुन मोमिनन मोमिनिन। अब देखें मोमिनुन से जो ड्यूअल बनेगा मरफू में वो होगा मोमिनानी मोमिनानी, और प्लूरल होगा मोमिनूना, मोमिनुन मोमिनानी मोमिनूना। यानी जब लिखा होगा मोमिनानी ये फाइली स्टेटस है, ये मरफू हालत मानी जाएगी। इसी तरह मोमिनून ये भी मरफू पोजीशन मानी जाएगी। लेकिन अगर है मुंह नईन या मुंह नीना, वो मंसूब या जर्री हालत हो सकती है। अब आइए इस मुस्लिम को इस पर फिट करके देखते हैं। तो ये क्या बनेगा, मुस्लिमुन मुस्लिमाने मुस्लिमूना। तो जहां आप सुनेंगे मुस्लिमूना तो आपने कहना है ये मरफू है, और जहां आप सुनेंगे मुस्लिमीना तो आपने कहना है ये मंसूब या मजरूर है। इसी तरह अगर हम सौदिकुन का देखेंगे, सौदिकुन तो क्या है, मरफू है, सौदिकन मंसूब है, सौदिकिन मजरूर है। अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद हमारा क्लियर हुआ है। मुसन्ना में हम अब देख रहे हैं आने का साउंड मरफू के लिए, आईनी का साउंड मंसूब या मजरूर इंप्लाई करता है। जैसे सौदी काने, सौदिकाने तो ये मरफू है, सौदिकीना मंसूब या मजरूर है। इसी तरह सौदिकूना ये मरफू है। इसी तरह आप इन पर इसकी मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आइए मुअन्नस को भी एक बार देख लेते हैं, जो कि इंशाअल्लाह ताला क्लियर तब होगा जब हम जेंडर टॉपिक के बाद इसे एक बार फिर से देखेंगे। ये स्लाइड लाने का ये मकसद है कि हम देखें कि हाउ मच रेलिवेंट इज एराब
इन केस ऑफ ड्यूअल एंड प्लूरल। यानी इसको बेहतर तरीके से कब हम समझेंगे, जब हमारा नंबर भी क्लियर हुआ होगा और जेंडर भी क्लियर हुआ होगा। तो देखिए, मोमिनतुन, मोमिनतन, मोमिनतिन। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें पता चल गया कि ये मरफू है, मंसूब है, ये मजरूर है। अब यहां देखें, पहले मुसन्ना में क्या है, मोमिना तान्य, फिर से आने का साउंड, और यहां पे आईने, 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 आईने का साउंड क्या बताएगा कि ये दो जो हैं ये या मंसूब हैं या मजरूर है। फिर देखें इसका जो हमारे पास जमा है, मोमिनातुन, मोमिनातुन, तुन के साथ है, सीधे आइडिया मिल जाता है। लेकिन यहां आपने याद रखना है कि मोमिनातिन लगता तो ये क्या है, मजरूर है, लेकिन नस्बी हालत भी जमा मोनस की ऐसे ही आती है। सूर्य नंबर 23 की आयत नंबर 1, कद अफलहल मोमिनून, बेशक फलाह पाई मोमिनून ने। तो यहां आप नोट कर सकते क्या है, मोमिनून ये जमा है, लेकिन देखें तर्जुमा क्या है, बेशक मोमिनून ने फलाह पाई, यानी मोमिन यहां पे क्या है, ये फाइल है। आप इस आयत को देखें, सूर्य नंबर 85 की आयत 10 को देखें। पहले इस वर्ड पे फोकस करें। तो जब हम इस वर्ड पे फोकस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मुमिनीन, यहां है मुमिनून और यहां पे क्या है, मुमिनीन। अब इस आयत को जरा एक बार पढ़ते हैं, इन्नल लजीना, बेशक वो लोग जो, फतनुल मुमिनीना, बेशक वो लोग जो, फतनुल मुमिनीना, तकलीफ देते हैं मुमिनों को, बेशक जिन्होंने मोमिनों को तकलीफ दी, वल मोमिनाते। तो बताइए ये जो मोमिन है ये फाइल है या मफूल है, तो आप लाजिमी कहेंगे कि ये मफूल है। पहली आयत में हमने तर्जुमा किया मोमिनून ने कामयाबी हासिल की, और यहां पे तर्जुमा क्या करते हैं, बेशक जिन लोगों ने, यानी जिन लोगों ने, यानी काफिरों ने क्या किया, फतनुल मोमिनीन, इन्होंने तकलीफें दी। किनको तकलीफें दी, यानी मोमिन क्या है, मोमिन मफऊल है। अब यहां देखें सूरह नंबर 15 की आयत 77। पहले देखें कि यहां पर जैसे हमने कहा लाम जो है एक आमिला में से है। लाम क्या करता है, लाम इसम को मजरूर करता है। तो यहां पर भी मोमिनीन है, यहां पर भी मोमिनीन है, लेकिन यहां हमें पता चल गया कि यहां पे हुर्फी जारा में से ले है। तो है तो ये दोनों सेम, हमने इसको मंसूब कहा क्योंकि ये मफऊल है, लेकिन ये भी इसी पोजीशन में है, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, ये मजरूर है। एक बार इसका तर्जुमा देख लीजिए, इन्ना बेशक, फी में, जालिका इस, लायातिन निशानी है, लिल मोमिनीन बेशक इसमें, इस सरगुजिश्त में, इस केस के अंदर क्या है, अहल ईमान के लिए। अब देखें सूरह नंबर 18 की आयत नंबर 8। तो पहले इसको एक बार फिर से देख लीजिए, राइट साइड में हमने क्या कहा, हमने कहा मुमिनून, ये किस हालत में है, ये मरफू हालत में है। ये मुमिनीन यानी ये वाला मुमिनीन किस हालत में है, ये नस्बी हालत में है, और ये मुमिनीन किस हालत में है, ये जर्री पोजीशन में है। मजीद और एक चीज जो हमें फोकस करनी है, तो देखिए हमने कहा मुमिनीन क्या है, यानी बेशक जिन लोगों ने तंग किया मोमिनों को और मोमिन औरतों को। तो बताइए ये मोमिनात भी क्या है, नस्बी हालत है, और इसे हमने किससे देखा, आतिन के साउंड से। अब आतिन क्यों नहीं आया, अल की वजह से। यानी एक एक हर्फ को आप देखें, सारे जो कायदे हैं अल्लाह ताला की तौफीक से वो क्लियर होते जाएंगे। सूर्य कहफ की ये आयत है, वह अमल गुलाम, और रहा लड़का, फकाना तो था, अब वाह उसके माँ बाप, मोमिनैन दोनों, दोनों मोमिन थे। तो ये ड्यूअल है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो फाइली पोजीशन में होगा वो आनी के साथ होगा, लेकिन ये क्या है, मोमिनैन। अब देखें सूरह नंबर 66 की आयत 5 में है। ये आयत इससे पहले अल्लाह ताला की तौफीक से हमने एक बार देखी थी, असा
بعید نہیں، ربہ اس کا رب، ان اگر طلقکن تمہیں طلاق دے دے، ان کے یبدلہ وہ بدل دے اسے ازواجن ازواجن بیویاں خیرن بہتر، تو یہ دونوں نسبی حالت میں ہے، من کن تم میں سے، مسلماتن تو یہ کس پوزیشن پہ ہے، مسلماتن مومناتن، مسلم مسلم اور مومن، تمہیں بدل دے ایسی بیویوں سے جو کہ مسلمات بھی ہیں اور مومنات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے اور ایک چیز یہ جانی تھی کہ ہر اسم تینوں حالات سے گزرتا ہے، لیکن کہیں پہ وہ چینج ہوتا ہے، لیکن کہیں پہ چینج نہیں ہوتا۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ اس بنیاد پر کہ آیا مختلف حالات میں اسم اپنے آپ کو بدلے گا یا نہیں بدلے گا، اس پر ہم نے اسما کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا۔ بیسیکلی تھی 2 ہی کیٹیگریز، جن کو ہم نے کہا معرب اور مبنی۔ مبنی ایسے اسما تھے جو چینج نہیں ہوتے، ان کو آپ فاعلی پوزیشن پہ لائیں، مفعولی پوزیشن پہ لائیں یا اضافی پوزیشن پہ لائیں، یعنی رفعی حالت میں بھی، نصبی حالت میں بھی اور جری حالت میں بھی وہ سیم رہتے ہیں، جیسے موسیٰ موسیٰ اور موسیٰ۔ اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ جو منصرف اسما ہوتے ہیں وہ تینوں میں ڈفرنٹ دیکھتے ہیں، جیسے محمدن محمدن اور محمدن، جبکہ غیر منصرف اسما ایسے اسما ہیں جو کیا ہوتے ہیں، جن میں نمبر 1 تنوین تو آتی ہی نہیں، اور پھر ان میں جو نسبی اور جری حالت وہ بالکل سیم ہوتی ہے۔ مزید ہم نے یہ جانا تھا کہ منصرف اسما میں جب زبر تنوین لگتی ہے اس کے بعد ایک زائد الف لکھا جاتا ہے، سوائے یہ کہ اسم کے آخر پر گولتا ہو، یا سوائے یہ کہ اسم کے آخر پر الف اور حمزہ اکٹھے آتا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کچھ مثالیں اس میں کی تھی، جیسے محمدن محمدن محمدن، خاشعتن خاشعتن خاشعتن، اکوابن اکوابن اکوابن، اسی طرح کتابن کتابن کتابن، نارن نارن نارن، جنتن جنتن جنتن، اقلامن اقلامن اقلامن، عاملتن عاملتن عاملتن، طعامن طعامن طعامن، نساء نساء نساء، وجوہ وجوہن وجوہن، اموالن اموالن اموالن۔ اس کے برعکس ہم نے دیکھے جو غیر منصرف اسما تھے، اس میں ہم نے دیکھا یوسف یوسفا یوسفا، کوئی تنوین نہیں، اور نسبی اور جری حالت سیم، آدم آدم آدم، مریم مریم مریم، اکبر اکبر اکبر، ابلیس ابلیسا ابلیسا، جبریل جبریلا جبریلا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی جب نمبر ٹاپک پڑھیں گے ہم یہ جانیں گے کہ جو پلورل ہوتا ہے وہ 2 ٹائپس کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جمع مکسر، ایک ہوتا ہے جمع سالم۔ جمع سالم میں تو سفکسز لگتے ہیں، یعنی اس میں آنے اونا کے ساؤنڈز آتے ہیں، لیکن جو جمع مکسر ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جیسے انگلش میں ٹیتھ ہوتا ہے، فیٹ ہوتا ہے، اس میں ایس ای ایس نہیں لگتا ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی ایسے جمع کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں، اور جمع سالم وہ ہوتا ہے جس میں سفکسنگ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ علماء کس کی پلورل ہے، وہ عالم کی ہے، عالم خود منصرف ہے، لیکن اس کی جمع مکسر جو ہے وہ غیر منصرف ہے۔ اب آئیے آج کا جو مین لیسن ہے ہم اس کے بارے میں آج بات کریں گے۔ یعنی کل ہم نے جانا تھا کہ غیر منصرف اسما ایسے اسما ہوتے ہیں جو تینوں حالات میں ہوتے ہیں، لیکن شکلیں ان کی 2 ہی ہوتی ہیں، یعنی ان کی ایک رفعی پوزیشن ہوتی ہے، ان کی نسبی اور جری پوزیشن سیم ہوتی ہے۔ تو پہلے ہم نے فرسٹ پرنسپل کے رول کے مطابق یہ جانا تھا کہ کسی اسم کو جاننا دراصل ہمیں یہ بتائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، آیا یہ منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہے، یہ مبنی ہے۔ لیکن پھر زبان والوں نے کچھ محنتیں کی ہے، کچھ کاوشیں کی ہیں، کچھ کوششیں کی ہیں تاکہ وہ اس سفر کو تھوڑا سا آسان بنا لے، تو ان میں انہوں نے پھر کیٹیگورائزیشن کی ہے۔ تو لہٰذا اس میں جو ایکسیپشن کا دروازہ ہے، یعنی استثناء کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھنی چاہیے۔
تو इसमें जो इन्होंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं कि गैर मुनसरिफ अस्मा कौन कौन से होते हैं, तो उनमें पहले क्या है, अरब औरतों के नाम, उनमें क्या है, फरिश्तों के नाम, मर्दों के नाम जिनके आखिर पे आन हो, रंगों के नाम, गैर अरबी नाम, ऐसी सिफात जिनके आखिर पे आन आए, इसी तरह मर्दों के नाम जिनके आखिर पे गोलता हो, शहरों और मुल्कों के नाम, इन्हें भी हम गैर मुनसरिफ मानते हैं। इसी तरह कुछ अस्मा हैं जैसे इबलीस है, फिरआउन है, उमर है और जहन्नम है, ये हमें नोट करने हैं कि इनको अरब जो है इनको गैर मुनसरिफ मानता है। इसी तरह और एक कैटेगराइजेशन इसमें है कि हमजा पर खत्म होने वाले जमा मुकस्सर, यानी जमा मुकस्सर क्या होते हैं, जमा मुकस्सर खास जमा होते हैं जो सफिक्सिंग कबूल नहीं करते, ये इंशाल्लाह हम नंबर में पढ़ेंगे। और ये भी हम नोट कर सकते हैं कि इन 6 नबियों के बगैर जितने भी नबियों के नाम हैं वो भी गैर मुनसरिफ है, यानी जब हमें ये 6 अस्मा मिलेंगे, ये 6 नबियों के नाम मिलेंगे, हम इन्हें तनवीन के साथ अदा करेंगे, इसके बगैर जो होंगे वो बगैर तनवीन होंगे, जैसे मुहम्मदुन मुहम्मदन मुहम्मदिन, नूहुन नूहन नूहिन, हूदुन हूदन हूदिन, लूतुन लूतन लूतिन, शुएबुन शुएबन शुएबिन, सॉलिहुन सॉलिहन सॉलिहिन। और फिर हम देखेंगे कि अल का एक इम्पैक्ट होता है, वो कभी गैर मुनसरिफ में जर्री पोजीशन पर जेर कबूल करता है। अब आइए कुछ मिसालों से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने गैर मुनसरिफ अस्मा के बारे में जानना है। गैर मुनसरिफ अस्मा में हमने क्या कहा, ये वो अस्मा है जिनमें तनवीन नहीं लगती। उनमें से पहले है शहरों और मुल्कों के नाम, शहरों और मुल्कों के नाम, जैसे आप कभी नहीं कहेंगे अना मिन पाकिस्तानुन, पाकिस्तानुन नहीं कहेंगे, यानी कंट्री का नाम विद तनवीन नहीं आएगा। इसी तरह याबानुन नहीं कहेंगे, याबानु, यानी कंट्री के नाम में हम तनवीन नहीं लगाते। इसके बाद देखिए हमजा पर खत्म होने वाले जमा मुकस्सर, तो मैंने अभी अर्ज किया जमा 2 किस्म के होते हैं, कुछ सफिक्सिंग कबूल करते हैं, उन्हें जमा सालिम कहते हैं, उनमें हमें ऊना मिलेगा, ईना मिलेगा, लेकिन जिनकी जो जमा है वो डिफरेंट है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पे कहा फीट है इंग्लिश में, इसी तरह विमेन है, मेन है, जो कि प्लूरल है जिनमें एस नहीं है, इंशाल्लाह हम नंबर टॉपिक में पढ़ेंगे। तो औलियाउ औलिया औलिया, उलमाउ उलमा उलमा। अरब औरतों के नाम तो हम आमिनतुन नहीं कहते हैं, आमिनतु आमिनता आमिनता, इसी तरह आयशतु आयशता आयशता। फरिश्तों के नाम जैसे जिब्रीलु मीकालु, जिब्रीलु जिब्रीला जिब्रीला, मीकालु मीकाला मीकाला। मर्दों के नाम जिनके आखिर पर गोलता हो, तो उसामतुन नहीं कहते हैं, तलहतुन नहीं कहते, बल्कि उसामतु उसामता उसामता, तलहतु तलहता तलहता। इसी तरह मर्दों के नाम जिनके आखिर पे आन हो, जैसे उस्मान लुकमान, हम नहीं कहेंगे लुकमानुन, लुकमानु लुकमाना लुकमाना, इसी तरह उस्मानु उस्माना उस्माना। अब यहां पर और एक चीज हमें याद रखनी है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं मिन आइना अंता या मिन आइना अंते, तो आप जवाब में क्या कहेंगे, अना मिन या बा अना मिन। तो आप जब मिन यूज करेंगे, अगर आप खाली याबान कहेंगे तो आप कहेंगे अना मिन याबाना, याबाना, हाँ, क्योंकि याबाना इसकी क्या है, जर्री पोजीशन है। लेकिन अगर आपने अल इस्तेमाल किया, आप मिनल याबानी कह सकते हैं, यानी अल जो है इस असर को रोक देता है। अल गैर मुनसरिफ अस्मा में जेर देने में हमारी मदद करता है। लेकिन याद रखना है जब हम अल लगाते हैं तो वो मुअर्रफ बन जाता है, लिहाजा हर जगह पर अल नहीं लगाया जा सकता। गैर मुनसरिफ अस्मा की मजीद कैटेगरी देख लीजिए। गैर अरबी नाम, जैसे किसी का नाम विलियम है तो विलियम मुन नहीं आएगा, किसी का नाम चार्ली है तो उसका नाम हम जार्लियो लिखेंगे, यानी तनवीन के बगैर। और फिर इसकी हालात विलियमो विलियमा विलियमा, जार्लियो जारलिया जारलिया,
इसी तरह रंगों के नाम, तो रंगों के नाम देख लीजिए, अस्वदुन अहमरुन नहीं कहते बल्कि अस्वदु, अस्वदु अस्वदा अस्वदा, अहमरु अहमरा अहमरा। इसी तरह आने वाले सिफात जैसे जौआनु जौआनु जौआना जौआना। तो यहां फिर से एक बात क्लियर हो गई कि सिफात बेसिकली अस्मा होते हैं। इसी तरह रहमानु रहमाना रहमाना। और फिर हमने देखा छह नबियों के बगैर जितने भी नाम हैं हम उन्हें गैर मुनसरिफ मानेंगे। जैसे इसमें है आदमु, इब्राहिमु, इस्माइलु, इसहाकु, यूसुफु और यूनुस। यानी ये किसी भी पोजीशन में हो, हम इन्हें तनवीन कभी नहीं लगा सकते। इनकी हालात क्या होंगी? आदमु आदमा आदमा, इब्राहिमु इब्राहिमा इब्राहिमा, इस्माइलु इस्माइला इस्माइला, इसहाकु इसहाका इसहाका, यूसुफु यूसुफा यूसुफा, यूनुसु यूनुसा यूनुसा। अब आइए आखिर पर इन दो आयत को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस मिसाल को देख लीजिए, वइज और याद करो जब, कौला आगे क्या है? लुकमान, यानी लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा लिइब्निही अपने बेटे से। तो ये लुकमानु है, तो सीधे ये इसकी कौन सी पोजीशन है? फाइली पोजीशन है, यानी ये रफा के साथ है। वइज कौला लुकमानु लिइब्निही, और याद करो जब कहा लुकमान ने अपने बेटे से, वहुवा यइज़ुहु, और वो उसे नसीहत कर रहा था। यानी फिर इसका तर्जुमा हम यूं करते हैं कि याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे से नसीहत करते हुए कहा, क्या कहा? या बुनैया, ए मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, इन्न शिरक, बेशक शिर्क, लजुल्मुन अजीम, बहुत अजीम जुल्म है। अब देखें इसी सूरत की पहली आयत में, यानी पहले हमने 13 आयत पढ़ी। 13 आयत को हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि इसमें हमारा फाइल था, यानी डिफॉल्ट पोजीशन थी। अब इससे पहले वाली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व और लकद अलबत्ता तहकीक, आतैना हमने अता किया, लुकमाना किसको अता किया? लुकमान अलैहिस्सलाम को। तो लुकमान किस पोजीशन पे है? मफऊल में। क्यों? हमने अता किया, किसको अता किया? लुकमान अलैहिस्सलाम को। तो लुकमान यहां पे क्या है? ये इसकी मफऊली पोजीशन क्लियर है, और आप देखें जबर के साथ है, मफऊली पोजीशन है, और ये क्या है? ये इसकी नस्बी हालत है। वलकद और अलबत्ता तहकीक, आतैना हमने अता किया, लुकमाना लुकमान अलैहिस्सलाम को क्या अता की? हिकमा, हमने उसे हिकमत अता की। अन के उश्कुर लिल्लाह, शुक्र अदा करो अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र अदा करो। व और मैं यशकुर, जो शुक्र करता है, फ़इन्नमा पस दर हकीकत, यशकुरु लिनफ्सिही, वो शुक्र करता है अपने लिए, अपनी जान के लिए। वमन कफरा, और जो कुफर करता है, जो नाशुक्री करता है, जो इनकार करता है, फ़इन्नल्लाह, तो जान लो बेशक अल्लाह, गनी है, गनीयुन बेनियाज है, हमीदुन तारीफों के साथ। वइज़ क़ाला मूसा लिकौमी, याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तो ये फाइली पोजीशन पे है। वकल्लमल्लाहु मूसा, अल्लाह ने कलाम किया मूसा से, तो ये क्या है? ये मफूली पोजीशन में है। व औहैना, और हमने वही की, इला मूसा, मूसा की तरफ, ये जर्री पोजीशन में है। तो यहां पे रफी नस्बी जर्री नो चेंज, कहीं पे कोई चेंज ही नहीं। व इज आतैना मूसा, और याद करो जब हमने अता किया मूसा को किताब और फुरकान, फर्क करने वाली, लअल्लकुम, ताकि तुम तहतदून, हिदायत पा सको। और हमने वही की मूसा की तरफ, अन के, अल के असा, फेंक दे अपना असा। वमिन कौम मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से, उम्मतुन यहदून बिल हक व बिही यादिलून, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से उम्मतुन एक ग्रुप ऐसे लोगों का था, यहदून बिल हक, वो क्या करते थे?
وہ بلاتے تھے، وہ رہنمائی کرتے تھے حق کی، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس کے مطابق یعدلون، انصاف کرتے تھے، عدل کرتے تھے۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اعراب کے ٹاپک کو ہم نے تھوڑا ریکیپ کیا۔ ہم نے کل یہ جانا تھا کہ کچھ اسما معرب ہوتے ہیں اور کچھ اسما مبنی ہوتے ہیں۔ آج ہم نے معرب اسما میں سے غیر منصرف اسما کی کچھ مثالیں دیکھی، یعنی جنہیں ہم نے پارشلی چینجنگ ناؤنس کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔